students, how are you all? Good? Okay. I welcome you to the next session of marketing. In this session, we will be dealing with importance and or importance or significance of marketing. This is one of the most likely question asked by your university in your exams. Define market या फिर define marketing, explain the importance or significance of marketing. And guys, this question is very simple to understand and very easy to learn. So let's see what does it says. The importance or significance of marketing basically means marketing हमारे लिए क्यों important है या फिर marketing किस लिए important है. Clear? मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, जैसे हमने मार्केटिंग का लास्ट सेशन में देखा था कि मीनिंग क्या है मार्केटिंग का. मार्केट व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज ऑल अबाउट. Marketing is nothing but that business activity which directs the flow of goods or services from producer to the consumer for profit. मतलब क्या था इसका कि मार्केटिंग वो बिजनेस की एक्टिविटी है जहां पर आपके गुड्स प्रोड्यूसर या आपके सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर जाते हैं वो एक प्रॉफिट के साथ. इन द सेंस व्हेन यू गिव योर गुड्स, सेल योर गुड्स to the producer, to the consumer, to the buyer, that time buyer takes the goods and he gives you something in return. Next definition by Paul Mazur was marketing is that activity which delivers and creates standard of living to the society at a large. मतलब क्या, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर बल्कि क्रिएशन ही नहीं बल्कि डिलीवरी भी होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ऑल वी विल बी स्टडीइंग एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मींस इन माय लास्ट सेशन. टुडे वी विल बी डीलिंग विद व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इज. Marketing, importance of marketing is broadly classified into two forms, broadly categorized into two parts, that is importance to the society. One is importance to consumer oblique society, and next one is importance of marketing to the business. Importance of marketing or significance of marketing is broadly classified into two parts, that is importance to the consumer or society and importance to the business. Now first we will be dealing with this part. What does importance and how marketing is importance to the society or to the consumer at a large. First important point of marketing is it creates and improves standard of living in the society. What does it actually mean? What is standard of living? मतलब क्या है, मार्केटिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केटिंग या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है सोसाइटी में. कैसे इंप्रूव करता है मार्केटिंग सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? बाय फोकसिंग ऑन परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर. अब आप बोलोगे मैम आपने तो पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बाद फिर आप बोल रहे हो परचेसिंग पावर. व्हाट डज एक्चुअली परचेसिंग पावर मींस? माय डियर स्टूडेंट्स, परचेसिंग पावर इज नथिंग बट अ पावर और एन एक्टिविटी व्हिच हेल्प्स यू टू इंप्रूव योर और विच हेल्प यू टू एंजॉय योर लाइफ. देखो मैं मेरी लाइफ को डिफरेंट वे से एंजॉय करती हूँ, आप आपकी लाइफ को डिफरेंट वे से एंजॉय करते हो. हम अपने लाइफ को उस तरीके से एंजॉय करते हो जितना हमारे पास स्पेंड करने की ताकत है. अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज स्पेंड करने के लिए है तो विल आई बी स्पेंडिंग 1000 रुपीज? नो. दैट मीन्स मेरी परचेसिंग पावर इज ओनली अप टू 100 लिमिट्स. If you have a capacity to spend 1000 rupees in a day, that means you have a purchasing power. मतलब कि आपके पास ताकत है कि आप 1000 रुपए दिन का खर्चा कर सकते हो. जब हम 100 रुपए खर्चा करेंगे अपने आप पर या 1000 रुपए खर्चा करेंगे अपने आप पर, सपोज मिस्टर ए की पावर है सिर्फ 100 रुपीज टू स्पेंड पर डे एंड मिस्टर बी की परचेसिंग पावर है
₹1000 to spend per day. What does it actually means? अगर ये ₹100 spend कर रहा है per day अपने ऊपर, that means इसका जो way of living है ये simple है, and इसका way of जो living होगा वो थोड़ा high होगा, right? Because ये अपने आप पर ₹1000 spend कर सकता है per day, और ये अपने आप पर सिर्फ ₹100 spend कर सकता है per day. Depending upon how much you can spend, you enjoy your life. For example, मेरे हाथ में ताकत है कि I can spend ₹2000 per day on myself, but I don't spend. अगर मैं spend नहीं कर सकती हूँ तो मेरी standard of living 100 की 2000 की नहीं है. मैं कितना spend कर सकती हूँ, that time मेरी standard of living determine करेगी. क्यों? क्योंकि देखो, suppose I am dressing in a good form because I was ready to spend much more, right? I have the money. अगर मेरा attire is very shabby, I have the money in my pocket, but I am not ready to spend. That will not improve my standard of living. Standard of living basically means आप कितना spend कर सकते हो. अगर आप कमाते हो 10,000 और आप पूरे 10,000 spend करते हो, that means आपकी purchasing power 10,000 है. अगर आप कमाते हो 10,000, आप सिर्फ 2,000 spend करते हो, तो that means आपकी purchasing power सिर्फ 2,000 है. मार्केटिंग क्या करता है? आपकी परचेसिंग पावर को इंप्रूव करता है, और जब आपकी परचेसिंग पावर इंप्रूव हो जाती है, अल्टीमेटली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाती है. नाउ हाउ द परचेसिंग पावर मार्केटिंग इंप्रूव्स? मार्केटिंग इंप्रूव्स परचेसिंग पावर बाय क्रिएटिंग डिमांड, बाय क्रिएटिंग वांट फॉर द कमोडिटी. मार्केटिंग कैसे परचेसिंग पावर इंक्रीज करता है? हमें कैसे पता है कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए? बिकॉज हमें किसी ने रियलाइज करा के दिया कि ये प्रोडक्ट की जरूरत हमें है. हमें किसी ने रियलाइज करा के दिया कि वी वांट दिस प्रोडक्ट एंड वी आर इन नीड ऑफ दिस प्रोडक्ट. जो इंसान, जो एक्टिविटी हमें रियलाइज करा कर देती है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्यों चाहिए, दैट इज मार्केटिंग. क्लियर? जब हमें किसी ने रियलाइज कराया व्हाट वी वांट, नाउ द फैशन ऑफ प्लाजोस आर देयर, आई वांट प्लाजो, अदर leggings and all also I can use, but I want plazo. Why? Because the trend is there. मुझे ट्रेंड कैसे पता चला? Because of marketing, and I purchased it. When I purchased it, I improved my standard of living. Similarly, सोसाइटी के wants भी मार्केटिंग ऐसे ही satisfy करता है. और जब मार्केटिंग सोसाइटी के wants, सोसाइटी के नीड satisfy करता है, and it improves the purchasing power of the society, at that time marketing gives a standard of living to the society. Marketing improves the standard of living to the society. वो consumer, एक consumer की भी improve करता ही करता है. When we club together all the consumer, it gives a form of the society. Clear to all? The next point for this importance is it creates employment. It creates employment. First point was creates and improves standard of living. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर मींस हाउ मच यू आर रेडी टू, हाउ मच यू आर रेडी टू स्पेंड. रेडी टू स्पेंड इज नोन एज परचेसिंग पावर. परचेसिंग पावर मतलब क्या है? आप कितना रेडी हो स्पेंड करने के लिए. और आप कब रेडी हो जाते हो स्पेंड करने के लिए? जब आपको आपके वांट्स सेटिस्फाई करना होता है. और ये वांट्स को सेटिस्फाई करने का काम कौन करता है? मार्केटिंग. क्लियर द फर्स्ट पॉइंट? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. नाउ हाउ मार्केटिंग विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट? सी माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपको मार्केटिंग, जब आपके वांट्स को आइडेंटिफाई करेगा, मार्केटिंग जब आपके वांट्स को देखेगा, रिसर्च करेगा आपको क्या चाहिए, डोंट यू थिंक कि जब वो आपके वांट्स को एनालाइज करता है, आपके वांट्स को सर्च करता है, तो वहां पे सर्च करने के लिए पहली बात तो रिसर्च करता है. तो रिसर्च के लिए कोई बंदे लगेंगे या नहीं लगेंगे? हु आर स्पेशलाइज्ड इनटू इट? एम्प्लॉयमेंट. ओके, आपकी जो प्रोडक्ट, आपका जो वांट पे रिसर्च हुआ है, उसे फुलफिल करने के लिए we have to do buying, we have to do selling, advertisement, then promotion, selling and distribution, exhibition. तो इसके लिए बंदे नहीं लगेंगे? Yes, obviously. And at that time marketing creates employment. ऐसे वे में marketing employ करता है. See, marketing एक broad aspect है.
सेलिंग अलग है, परचेसिंग अलग है, प्रोडक्शन अलग है, एडवर्टीजमेंट अलग है, देन यू हैव प्रमोशन। एंड डोंट यू फील ये सब एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, पीपल्स की जरूरत होती है। ऑब्वियसली अगर पीपल नहीं है, इफ देयर आर नो एम्प्लॉइज हु आर डूइंग दिस परफॉर्मेंस, how will a marketing function will be a marketing function until and unless it is being employed, until and unless people don't work to for it, right? This is how marketing creates employment. And once marketing creates employment, जब marketing employment create करता है सोसाइटी में, employment opportunities लोगों के बीच में आती है, तो अल्टीमेटली लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। और परचेसिंग पावर बढ़ने के बाद अल्टीमेटली हम फिर से हमारे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि it improves the standard of living of the society. Clear to all? Okay. First point था हमारा creates and improves standard of living. Second point था employment. Third point है satisfaction of human wants. Now what does satisfaction of human wants means? मार्केटिंग का मीनिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग इज दैट बिजनेस एक्टिविटी व्हिच डील्स विद आइडेंटिफाइंग ऑफ ह्यूमन वांट्स, फुलफिलिंग ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड सैटिस्फाइंग ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको ह्यूमन की जरूरत क्या है, आपकी सोसाइटी की जरूरत क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करती है। एंड वंस यू फाइंड आउट what your society wants, what your consumer wants, और उसमें क्या फीचर्स चाहिए, then you try to fulfill it. आप उसको पूरी करने की कोशिश करते हो। आप उसको पूरी कैसे करोगे? By creating time utility, by creating place utility, by creating possession utility. Yesterday in our topic I have cleared this place utility, time utility also, but today also in a brief I'll explain what does this actually mean. Satisfaction of human wants means आपको आपके मार्केटिंग हेल्प करता है आपको आपके कस्टमर सोसाइटी की वांट को फुलफिल करने के लिए और उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये मार्केटिंग कैसे सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन वांट्स? बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज, बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज। कौन से यूटिलिटी मेजरली मार्केटिंग क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करेगा मार्केटिंग? फॉर एग्जाम्पल आपको सर्दी है एंड नाउ विंटर्स आर देयर, ओके, नाउ विंटर्स आर देयर एंड यू वांट a cold jacket to wear on, create, you want a cold jacket to wear on and you are not aware of that jacket, आप aware नहीं है वो jacket के, ठीक है, you are not aware of that jacket, but what market will do, what marketing will do? Marketing will introduce you through advertisement, through promotions, through sales, through exhibition that see we have came up with this brand and this will satisfy your need for this time of winters. ये हम ब्रांड को लेकर आए हैं, ये हम ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आए हैं जो आपको आपके विंटर्स की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करेगा। ये ब्रांड को why they introduce only at the time of winter? Because people knows or the business knows अगर हम इसको ऑफ सीजन मार्केट करेंगे तो no one will purchase that product. Therefore, they wait for the right time to market and right time to enter into the minds of the customer as well. When they enter into the minds of the customer at the right time with the right season, at that time place utility, time utility is created. One more example I will give you. Now see the this thing, the cost of tomatoes, the cost of onions are going cheap now, right? Previously it was high, but nowadays they are going cheap. What the marketing will do? Marketing क्या करेगा? उसको cheap है, so they will not sell into the market if a good marketer is there. What he will do? He will purchase more and more and more and more at low cost. He will hoard it. He will create reservations for it. वो उसको hoard करेगा and it will create into a warehouse and उसमें डालते जाएगा, रखेगा with preservations and all. And he will bring that product with the help of transportation and warehousing. वो जब वो product को market में कब लाएगा marketer? At the time when the prices of products are high. Purchase कब किया था? Low price में. Sell कब कर रहे हैं? High price में. See the profit difference? A huge profit and the society
and the company or the business is also at a profit at this time, right? This is called as time utility. आप वो प्रोडक्ट को उस वक्त लाओ मार्केट में जब उसकी जरूरत है. At that time, even the marketer will be profitable, even the company will be profitable. Clear? अगर आप बिना जरूरत मार्केट में कोई चीज लाओगे तो your product will not have that much value than the other products. Clear to it? And it will not bear profitable results as well. And it will not satisfy the meaning of marketing. क्योंकि marketing कहता है कि बिजनेस मार्केटिंग वो बिजनेस की एक्टिविटी है जो वांट्स को आइडेंटिफाई करता है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है और फुलफिल करते हुए वो अपना प्रॉफिट निकालता है. अगर हम हमारे प्रोडक्ट को आउट ऑफ टाइम लेकर आते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स इसमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा. देयर विल बी ओनली लॉस एंड मार्केटिंग इट डज नॉट डील विद एनी लॉसेस. क्लियर? ओके. नाउ प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो चीज को प्लेस चेंज करने से अगर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, उसका यूज बढ़ जाता है, तो मार्केटिंग वैसी चीजें आपके लिए लाता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे एप्पल्स चाहिए या फिर मुझे कश्मीर से सैफरॉन चाहिए. ठीक है, सैफरॉन. अगर मुझे कश्मीर से सैफरॉन चाहिए तो डू यू फील सैफरॉन हमारे पास जो मिलता है वो अच्छा है? नो. बिकॉज आज मुझे लग रहा है कि सैफरॉन हमारे पास जो मिलता है वो अच्छा नहीं है. ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिसको ऐसा लगता है कि सैफरॉन जो हमारे पास मिलता है वो अच्छा नहीं है. वी वांट अ गुड क्वालिटी ऑफ सैफरॉन. व्हाट द ब्रिलियंट मार्केटर विल डू? मेरी वांट तो आइडेंटिफाई हो गई, मार्केट की वांट आइडेंटिफाई होगी, मार्केट को प्रॉपर सैफरॉन चाहिए ऑफ कश्मीर. व्हाट द मार्केटर विल डू? इट विल ब्रिंग द सैफरॉन फ्रॉम कश्मीर टू पुणे एंड सेल इट. जो सैफरॉन कश्मीर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज देयर वर प्लेंटी ऑफ सैफरॉन प्रोडक्शन, तो इतना वैल्यू नहीं था, मगर उसको पुणे में आने के बाद अगर उसका डिमांड बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज the value of saffron is created because of place utility. When you transfer the place of commodity and utility of the product increases, at that time it is said कि you create a place utility. जब आप टाइम यूटिलिटी करते हो, टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हो, उसको एडवर्टाइज करते हो, तो कंज्यूमर के वांट सेटिस्फाई होते हैं, कंज्यूमर के वांट फुलफिल होते हैं. आप प्लेस चेंज करते हो तो कंज्यूमर की वांट्स अगर सेटिस्फाई हो रही है, कंज्यूमर को जैसे कश्मीर मुझे सैफरॉन चाहिए, आई डोंट वांट सैफरॉन ऑफ पुणे, आई वांट अ प्योर सैफरॉन ऑफ कश्मीर. तो व्हाट द मार्केटर विल डू? द मार्केट वांट सैफरॉन ऑफ कश्मीर, ही विल गो टू द कश्मीर, ही विल ब्रिंग सैफरॉन एंड ही विल सेल सैफरॉन हियर. क्लियर? जब वो इधर सैफरॉन सेल करेगा तो अल्टीमेटली प्लेस यूटिलिटी हो गई, चेंज ऑफ प्लेस एंड यूज बढ़ गया. एंड व्हेन देयर इज अ प्लेस यूटिलिटी, मेरा डिजायर सेटिस्फाइड हो गया, आई एम फुलफिल्ड. Okay, the wants are satisfied. Next one, possession. Possession या position utility. Possession और position utility का मतलब क्या है? When I sell my product, जब मैं अपना प्रोडक्ट सेल करती हूँ, अगर सपोज मैं आज सेलर हूँ, मैं आज अ कंपनी हूँ, मैं ये सेल करने के लिए आई हूँ, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्रॉपर्टी मेरी है, राइट? But when I sell it to you as a buyer, the property or ownership transfers. अगर ये मेरे पास एज अ कंपनी है तो मुझे उतना यूज है क्या इसका? नहीं है. बट व्हेन यू परचेस इट फ्रॉम मी, द यूज फॉर ऑफ दिस मार्कर फॉर यू ऑल इज मच मोर देन व्हाट इज टू मी, राइट? व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड चेंजेस, व्हेन यू फील दैट दिस इज माय प्रोडक्ट, आई हैव परचेस्ड इट, दैट टाइम द यूटिलिटी टू द बायर इज मच मोर देन द सेलर, and that time the buyer gets satisfied and our marketing funda is fulfilled here. Satisfaction of human wants. Clear? First point was to the consumer, importance of marketing to the consumer, creates and improves standard of living, 1 point. Second point was employment. It creates or it generates employment through various functions of marketing like advertisement, selling, distribution, branding, grading, then advertisement, promotion, showcasing. Clear? This many फंक्शन मार्केटिंग परफॉर्म, और हर फंक्शंस के मार्केटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको बंदों की जरूरत होती है, और वो बंदे अगर आप एम्प्लॉय करते हो, दैट मींस यू आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी. नेक्स्ट वन है सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. मार्केटिंग खुद कहता है कि मार्केटिंग इज नथिंग बट दैट बिजनेस एक्टिविटी व्हिच हेल्प्स or which
helps or which tries to satisfy human want at the end, and it will satisfy human want by creating time utility, by creating place utility, and by creating position utility. Clear to it? Now the next point under this is economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो मार्केटिंग को क्या फायदा है इसका, मार्केटिंग कैसे इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए यूज होता है. नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी, डिमांड एंड सप्लाई पे. इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी, डिमांड फैक्टर से और सप्लाई फैक्टर से. एंड मार्केटिंग प्लेज अ रोल विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई. कैसे, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमको चाहिए, मार्केटर क्या करेगा, इसको एडवर्टाइज करेगा, ऐसा एडवर्टाइज करेगा और कंज्यूमर्स के दिमाग में घुस जाएगा कि कंज्यूमर बोलेंगे नहीं मुझे सिर्फ यही प्रोडक्ट चाहिए. जब हम मार्केट में जाएंगे एज अ कंज्यूमर विल टेल कि वी वांट अ मार्कर ऑफ दिस कंपनी, दूसरा आएगा वी वांट अ मार्कर ऑफ दिस कंपनी, तीसरा आएगा वी वांट अ मार्कर ऑफ दिस कंपनी. दैट मींस मार्केटिंग ने क्या किया, आपके दिमाग में पूरा वो प्रोडक्ट के बारे में कॉन्शियसनेस क्रिएट की है. And now you are going to the market and you are asking only one product, that is this brand marker we want. That means demand for this has increased. जब demand increase होता है ultimately supply भी increase होगा, क्योंकि demand है product के लिए और supply नहीं है. This is not possible, right? अगर ये कंपनी के बंदे को पता है, ओनर को पता है कि ये प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, तो what he will do ultimately, he'll start producing more and more and more and more of markers. जब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई अगर नीचे है तो सप्लाई भी ऊपर आएगा. सप्लाई बढ़ेगा, अगेन मार्केटिंग उसको डिमांड, मार्केटिंग की वजह से वो डिमांड में आएगा एंड इट विल स्टार्ट बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई. और जब डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस होता है एंड व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो इसका प्रॉफिट इकोनॉमी को तो है ही है, बिजनेसमैन को भी है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड बढ़ा, सप्लाई को बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा, डिमांड बढ़ गया. सप्लाई ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उसके एम्प्लॉयज को प्रॉफिट होगा. एट एंड लार्ज एम्प्लॉयज को प्रॉफिट हो रहा है तो इकोनॉमी में एम्प्लॉय को प्रॉफिट, सैलरीज इंक्रीज हो रहे हैं, सैलरीज इंक्रीज हो रहे हैं तो इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है. इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है तो इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो अल्टीमेटली नेशन एज अ होल ग्रोथ होती है. राइट, इट इज अ सर्कुलेटिंग पार्ट. देखो, इफ डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा. राइट, अगर प्रॉफिट ज्यादा है इसका फायदा कंपनी को है. कंपनी अगर हाई प्रॉफिट कमा रही है तो वो इन रिटर्न एम्प्लॉयज की सैलरी को भी हाई करेगी. एम्प्लॉयज की सैलरी अगर हाई हो गई तो पर कैपिटा इनकम भी हाई हो गया. पर कैपिटा इनकम हाई हो गया तो इकोनॉमी अल्टीमेटली एक्सपांड होने लगेगी. क्लियर टू ऑल what is the meaning? पहली बात तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था. and how marketing is important to customer या consumer and society at a large. point number 1, it creates standard of living. standard of living का मतलब है purchasing power. purchasing power का मतलब है कि आप कितना expense करने के लिए, spend करने के लिए ready हो. clear? okay. सेकेंड पॉइंट वी हैव, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग कैसे क्रिएट करती है? थ्रू वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. एंड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग लाइक बाइंग, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, शोकेसिंग, प्रमोशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के लिए हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है. एंड इन दिस फॉर्म मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट वन है मार्केटिंग create satisfaction amongst the society or amongst the consumer by creating time utility, place utility and position utility. and ultimately marketing का meaning ही ये है, marketing का ultimate goal ही ये होता है कि वो अपने consumer की, अपने customer की wants को satisfy करे through any form of utility. basically there are 3 form of utility which are important for marketing, that is time, place and position. next one is
economic growth. How economy grows with respect to marketing? मार्केटिंग से डिमांड बढ़ता है, बिकॉज सी मार्केटर को पता है कि मार्केट में क्या चाहिए, बिकॉज ऑफ रिसर्च, बिकॉज वो रिसर्च इतना करता है कि उसको पता है प्रोडक्ट कस्टमर को क्या वांट है, कस्टमर को क्या चाहिए, एंड ही एडवर्टाइज इन द सेम वे, he publicize in the same way, he marketize in the same way, and even consumer feels yes, this is our want and we want it, and we go to the market, we demand it. When we demand, ultimately supply increases. When supply increases, production increases. Production increases, profit increases. Profit increases, it is a benefit to the company at a large. When the company benefits, it is indirectly benefit the employees of the society by increasing by employees of the company by increasing their salary. Once salary increases, per capita income increases. Per capita income increases, economy grows as well. Clear? Okay. Now the next part is business. How marketing is important to the business, we'll see now.